Okay, hello everyone. Once again, welcome you all at Lokestar Unlimited Study Zone. Today we are starting our new chapter magnetism. After the completion of the chapter magnetic effect of current, अब ये magnetism chapter start कर रहे हैं. वैसे मेरी समझ है कि ये chapter पहले आना चाहिए, okay? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले आप पढ़ लेते तो बेहतर होता, बट जैसा अपने सिलेबस में है तो कोई दिक्कत नहीं है और ये समझ में भी आएगा क्योंकि वहां पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था वो ड्यू टू करंट था, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं ये टोटली एंटायरली मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो हम यहाँ पे टोटली मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, मैग्नेटिक मटेरियल. नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल. तो इस चैप्टर में हम मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, है ना, और कैसे कैसे फोर्स लगता है, ठीक है ना. तो इस चैप्टर के दो सेगमेंट हैं और पहला तो है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल. दूसरा इसमें हमको पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसे आप जियो मैग्नेटिज्म भी कहते हैं. यू नो जियो मैग्नेटिज्म. जियो मीन्स अर्थ, मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिज्म ही है, तो मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है इसमें हम वो पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मैग्नेटिज्म. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मैग्नेटिज्म. फर्स्ट इज मैग्नेटिज्म. सो एज सीन द बुकलेट, phenomena of attracting magnetic substance like iron, nickel and cobalt. So is the property by which some material, specific material attracting some substance, okay, like iron, nickel, cobalt. अभी तक तो हमको यही पता है कि only iron is being attracted, but it's not true. There are so many substances that may be attracted. So iron, nickel, cobalt, like this. Second, a body possessing the property of magnetism is called magnet. Okay, a body possessing the property of magnetism is called a magnet. Now we talk some properties about them. Let's see. Consider this is a typical north-south pole magnet, as we have only the idea about these north-south pole magnet. Okay. So first question is what is magnetic pole. पहला है कि magnetic pole क्या होता है. Okay. So a magnetic pole is a point near the end of the magnet, where the magnetism is concentrated. जहाँ पे magnetism concentrate होता है उसको बोलते हैं अपन magnetic pole, and it is near to the end of the magnet. Okay, दो end होते हैं हर magnet के, तो दो poles होंगे. Okay, fine. Next, Earth is behaving like a natural magnet because as we know that all the objects being attracted by the earth, so earth is also behaving like a magnet. Got clear na? Next, the reason around the magnet. Now we define magnetic field. Okay, तो वैसे तो हमने पढ़ चुका है इसको, इस टर्म को हमने पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, बट यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेट. You have given a magnet and there are some certain reason around this magnet. Okay, there is some certain boundary, okay, across this magnet. इस magnet के आजू बाजू कोई ना कोई फिक्स प्लेस है, एक जगह है जहां पर it can exert its force. It can exert its force on another magnet. और कैन से यदि मैग्नेट नहीं तो ऑब्जेक्ट, मैग्नेट नहीं तो ऑब्जेक्ट. जरूरी नहीं कि आप इसकी विंसिटी में एक मैग्नेट ही लाओ. मे बी पॉसिबल आप इसकी डेंसिटी में क्या लेके आ रहे हो, मैग्नेटिक मटेरियल लेके आ रहे हो. ओके, सो इसके चारों तरफ में कहीं भी आप एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हो तो अपने चारों तरफ में उस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा. सो द रीजन अप टू वेयर इट कैन exert a force is called magnetic field. Okay, so I define the reason around the magnet in which it exert forces on another magnets, okay, and on object made up of iron is called magnetic field. So magnetic field is a space, nothing. Okay, now we're discussing about the properties of bar magnet. We all know very obvious properties of the bar magnet because हमने already 10th class में इनको घोट के रट मारा था बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज. ओके, सो लेट्स रिकॉल वंस अगेन, है ना, थोरोली रिकॉल करते हैं. Bar magnet, first property, a freely suspended bar magnet is align itself across along north-south direction.
डायरेक्शन। यदि आप एक मैग्नेट को फ्रीली लटकाएंगे तो वो इस तरीके से कुछ लटक जाएगा, ओके, एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन बन जाएगी नॉर्थ और एक डायरेक्शन बन जाएगी साउथ, ओके। किसी मैग्नेट को आप लटका देंगे तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर ही पॉइंट करेगा। वन एंड विल बी ए नॉर्थ, विच नॉर्थ? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। कौन सा नॉर्थ? ज्योग्राफिकल, जिसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं अपनी। तो वन एंड विल बी ए ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड वन एंड विल बी ए ज्योग्राफिकल साउथ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, unlike poles attract and like poles repel each other। सबको ही जानते हैं कि अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ला रहे हो तो वो रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल को ला रहे हो तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऑल यू नो, ओके। सो unlike poles attract each other and like poles repel each other। फाइन, ओके। चलिए, ये हो गई अनलाइक पोल्स और लाइक पोल्स की बात। देन मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यस, हाँ, जैसे चार्ज में मोनोपोल एग्जिस्ट करता था। मोनोपोल मतलब अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव। इन द केस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता था, अकेला पॉजिटिव एग्जिस्ट करता था, अकेला नेगेटिव एग्जिस्ट करता था। बट मैग्नेट के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां भी नॉर्थ होगा वहां साथ में क्या होगा? साउथ होगा। बेटा मेरी बात आ रही समझ में? आप एक मैग्नेट को टुकड़े टुकड़े कर दो, पीस दो, जो छोटे छोटे उसके क्रंचेस बनेंगे, जो छोटे छोटी जो टुकड़ियां बनेंगी, उसमें भी एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। यू कैन नेवर आइसोलेट। आप नॉर्थ और साउथ को कभी अलग अलग नहीं कर सकते हो, ओके। सो मैग्नेटिक मोनोपोल, नो वे, ओके। मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। This means poles can be separated. No, poles cannot be separated. Next, fourth point. A magnet can induce magnetism in another substances. यहाँ जी, एक जो मैग्नेट होता है वो दूसरे सबस्टेंसेस में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर लेता है। तो बच्चों होता क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि बच्चों दुनिया में जितने भी मैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, लाइक आपका आयरन हो गया, तो न्यूट्रली जब इसमें मैग्नेटिज्म पावर नहीं होती है क्रिएट, कब तक नहीं होती? ये आयरन रखा है, ये आयरन रखा हुआ है, आपने इसके बगल में कोई मैग्नेट नहीं लाया हुआ है, तो ये सिंपल क्या है? मटेरियल। सिंपल क्या है? मटेरियल। तो बेटा होता क्या है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं सबके अंदर होते हैं, तो वो ऐसे अरेंज रहते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, एंड यहाँ पे नॉर्थ साउथ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से ये क्लोज लूप की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। और इफेक्टिव मैग्नेटिज्म कितना दिखाते हैं? 0। कितना दिखाते हैं? क्योंकि मटेरियल है भाई, मटेरियल है, मटेरियल थोड़ा ना मैग्नेट बन जाएगा। लोहे की रॉड मैग्नेट थोड़ा ना पड़ी हुई है छत में कितने दिनों से, दैट्स अ मटेरियल। ऐसे अगला वाला भी सेम टू सेम 3 पार्ट्स। ओके, सो नॉट ऑलवेज इन द ट्रायंगुलर फॉर्म, कभी कभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कभी कभी स्क्वायरिक फॉर्म में, पेंटागन फॉर्म में अपने अपने मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो होते हैं अरेंज होते हैं। एंड इफेक्टिव मैग्नेटिज्म देखो, नॉर्थ साउथ, साउथ से नॉर्थ कैंसिल, नॉर्थ साउथ बैलेंस कर देगा, नॉर्थ साउथ बैलेंस कर देगा, नेट मैग्नेटिज्म क्या क्रिएट करेंगे? 0। बेटा बट जैसे ही आप एक बाहर से मैग्नेट इसके लिए ला रहे हो, चलो ये मैग्नेट लेके आए, ये क्या था? आयरन का रॉड था, रॉड की ये हालत थी शुरू में, बोलो बेटा। अब जैसे ही आप यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर के आए, यहाँ पे नॉर्थ लेके आए, यहाँ पे क्या होगा बेटा? साउथ। अब जैसे ही नॉर्थ लोगे तो इसके इम्पैक्ट में ये कैसे अरेंज होएगा? देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स थे ना, ये सो ये क्या बन जाएगा बेटा? साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, यस और नो? और फिर इसके इम्पैक्ट में है साउथ नॉर्थ, स्विंग साउथ नॉर्थ, इस बीइंग साउथ नॉर्थ, इसी तरीके से साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। तो ये वाला नॉर्थ के सामने आकर के मटेरियल का ये एंड क्या किसके जैसे बिहेव करेगा बेटा? साउथ के जैसे। किसके जैसे बिहेव करेगा? अभी तो अट्रैक्ट होता है, बोलो हाँ। चुंबक के पास आप लोहे की रॉड लाते तो क्या होती? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट होने के लिए अगर ये नॉर्थ है तो इसको क्या बनना था?
साउथ बन जाएगा, यस और नो, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चुंबक के बगल में आप एक रॉड लेके आओ और उससे भी कोई पिन अट्रैक्ट करवाओ, वो पिन उस पर चिपकती है कि नहीं चिपकती है, चिपकती है ना। खेलते रहे अपन बचपन में, एक चुंबक लगाया, उसके ऊपर एक लोहा का कुछ भी आर्टिकल लगा दिया, एक बोल्ट लगा दिया, उस बोल्ट के ऊपर भी अपन कुछ चिपका देते थे, वाशर चिपका देते थे, याद है ना। फिर पिन फेंकते थे तो एक वहां से क्या बन जाती है, चेन सी बन जाती है, लटके 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 लटके। खेले ये खेल बचपन में चुंबक वाले, है ना। तो ये क्या था, एक के पास दूसरा लटका, दूसरा लटका, दूसरा लटका। मेन कौन था, ऊपर मैग्नेट। अगर उस मैग्नेट को आप हटा लेते हो तो ये धड़ 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 पूरे टूट जाते थे, गिर जाते थे। सोर्स यही था, समझ गया ना। मतलब दिस इज मैग्नेट एंड ऑल दीज बिलो थिंग्स आर मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या थे, सब मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया। So a magnet can produce magnetism in other magnetic substances। तो बच्चे ये है मैग्नेट एंड ये है मैग्नेटिक मटेरियल। बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना इस चैप्टर में मेरे बच्चों। ये है मैग्नेट एंड ये है मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि बहुत समझना इस चैप्टर में। मटेरियल, दो बातें इस चैप्टर में आपको समझनी है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है और मैग्नेटिक मटेरियल की भी प्रॉपर्टीज क्या है। Later on we will see the properties of the magnetic material. Okay, fine. So a magnet can induce magnetism in other magnetic material substances। magnetic material कह लो या magnetic substance कह लो, इस तरीके से। क्लियर हुआ। It attracts magnetic substances। Yes, magnet can attract magnet and repel magnet according to the polarity। नॉर्थ के पास नॉर्थ लाओगे तो रिपेल करेगा, अगर सेम पोल लाओगे तो रिपेल करेगा, अपोजिट पोल लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। सो अबाउट द मैग्नेट इट कैन आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, बट अबाउट मैग्नेटिक सबस्टेंस ऑलवेज इट अट्रैक्ट। समझ गया ना। इस अट्रैक्ट मैग्नेटिक सबस्टेंस, ये मैग्नेटिक सबस्टेंस को क्या करेगा जी बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट वी टॉकिंग व्हाट इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म, रिपल्सन और अट्रैक्शन। श्योरेस्ट टेस्ट क्या है, कोई चीज दी गई है, ये मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका श्योरेस्ट टेस्ट क्या है, ये मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए मान लेता हूं मैग्नेट है, ओके, मैग्नेट है। अगर मैं इसके नॉर्थ और साउथ पोल के पास कोई दूसरे मैग्नेट के पास, मुझे तो पता नहीं था ये क्या है, मुझे तो ये नहीं पता था क्या है, मैं नॉर्थ साउथ पोल के पास लेकर के आया। मान लो यहाँ पे था नॉर्थ पोल और ये इसको अट्रैक्ट कर गया, ये इसको क्या कर गया, अट्रैक्ट कर गया। क्या इतना देख के बता दोगे कि ये मैग्नेट है? नो, क्योंकि अगर यही मेरे पास मैग्नेट था और मान लो मेरे पास ये अभी मैग्नेट था और अब मान लो ये मटेरियल था, क्या था ये, मटेरियल, आयरन रॉड। अब मैं इसको यहां पे लेके आऊंगा तो बताओ क्या करेगा, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये सुनो, पहले मैग्नेट को मैग्नेट भी अट्रैक्ट कर रहा था और मैग्नेट को मटेरियल तो करेगा ही। समझ गया ना। मतलब अट्रैक्शन से आप पता नहीं लगा सकते हो कि मैग्नेट है या मटेरियल है। बट यदि यहाँ पे साउथ के सामने साउथ होता, मैं पीछे लेके जाता, इस मैग्नेट को ऐसे पीछे लेके जाता, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और यदि इस मैग्नेट को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको तो क्या करेगा, नो, तब तो अट्रैक्ट करेगा ना मटेरियल को, मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बताइए क्या बना श्योरेस्ट टेस्ट, अट्रैक्शन और रिपल्सन? यस, सो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। रिपल्सन प्रॉपर्टी से पता चलता है कि दिया गया सैंपल आपके सामने जो है वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल। आ रही बात मेरी समझ में, क्लियर हुआ? So a magnet attracts iron rod as well as opposite poles of other magnet. Therefore, attraction is not the surest test of magnetization. Rather, repulsion is the surest test of magnetization. समझ में आया? क्लियर हुआ? बट
क्योंकि इफ ए रॉड इज रिपल्ड बाई स्ट्रॉन्ग फोर्स बाई अ मैग्नेट, इसका मतलब डेफिनेटली वो रॉड मटेरियल नहीं हो सकती है, वो 100% क्या है, वो मैग्नेट है। क्लियर हुआ? ठीक ना? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव सम फील्ड्स हियर। अब हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। ओके, देखिए पहला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस बोर्ड के प्लेन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड कह लो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह लो, बच्चों लिख लो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, ये जल्दीबाजी में लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, या आगे मैं पढ़ाऊंगा एक और बात, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलो? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और वो है वेक्टर बी। क्या है वो? वेक्टर बी। वेक्टर आने के साथ साथ ही इसके दो एक्सपेक्ट डेवलप हो गए हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ओके, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो आइए इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में हम कुछ फील्ड आपके सामने दिखा रहे हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये बना है आपके सामने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसकी डायरेक्शन पैरेलल से सारी एक ही दिशा में जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे बोर्ड के प्लेन में डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। ओके, हर जगह का गैप कांस्टेंट है, मतलब बी की वैल्यू फिक्स है। बी की वैल्यू क्या है? फिक्स है। बट यदि मैं देखो डायरेक्शन वाइज यदि मैं बदल दूं, सॉरी अभी एम्पलीट्यूड वाइज दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए अब ये क्या मैग्नेटिक यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर फील्ड क्या है बच्चे? स्ट्रॉन्ग है, और इन जोन में फील्ड क्या है बेटा? वीक है। समझ में आया? तो ये यूनिफॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। किसने तोड़ी यूनिफॉर्मिटी? मैग्नीट्यूड ने। डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग। आ रहा समझ में ना? तो ये मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ओके, अब देखिए एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, थोड़ा और देखो, ये देखिए, यस गैप्स देखो बेटा, गैप्स तो सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज यूनिफॉर्म है, बट डायरेक्शन वाइज बेटा इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखो, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है। समझ गया ना? इवन यदि मैं अकेले लाइन ही बना दूं तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसी लाइन में जो फील्ड ट्रेवल हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर मैं डायरेक्शन बोलूंगा तो कैसी जाएगी बेटा? ऐसी। इस पॉइंट पर जाऊंगा तो कैसी जाएगी डायरेक्शन बेटा? ऐसी। और इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी जाएगी? ऐसी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं। डन? यस, ये तो आप जानते होगे ना बेटा, क्रॉस पॉइंटेड फील्ड। मतलब सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां जा रही हैं? इनवर्ड। कैसी जा रही हैं? इनवर्ड। बताओ यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, क्योंकि गैप सेम है ना? सो दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, ये प्लेन ऑफ द बोर्ड, मेरी कॉपी, मेरा बोर्ड है, आप बनाएंगे तो आपकी कॉपी में। ओके, यस। ये क्या है बेटा? ये भी पढ़ा है ना अपन ने लास्ट चैप्टर में। ये कहां जा रहा है? इनवर्ड क्या आउटवर्ड? यस, दिस इज आउटवर्ड फुल। कहां की तरफ? बाहर की तरफ है। ओके, सो आउटवर्ड फील्ड है बेटा जी। ओके, सो यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर एंड इमर्जिंग आउट प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ओके, ऑफ द डायग्राम। क्लियर हुआ? नो। नेक्स्ट,
अब देखिए अगला टॉपिक डालिए, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। बेटा आपको याद होगा मैंने बताया था जब भी किसी, ये ऐसा लूप बना लिया, ये लूप बना लिया, ओके, इस लूप में आप करंट फ्लो कर दो, ये देखो, ठीक है ना, इस तरीके से करंट जा रही है। ये जो करंट जा रही है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज करंट है ये, ओके, ये क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज करंट है तो क्लॉकवाइज करंट सामने से देखने पर आपको याद होगा मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज जहां पे दिखता है तो वहां पे कौन सा पार्ट जनरेट होता है? नॉर्थ। तो ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा बेटा? बाहर साउथ। तो ये कॉइल का फ्रंट फेस जो आपको दिखा गया, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, सामने ये छल्ला है और आप सामने बैठे हुए हो, तो बेटा इसमें कौन सी पोलरिटी जनरेट होगी? साउथ। मैच कर लो, एस फॉर साउथ की, देखो देखो मैच कर रहा है टर्मिनल, साउथ हो रही ना जनरेट। अब अगर आप यहां से क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है, बोर्ड के पीछे जाके देखोगे आपको क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैं बोर्ड के पीछे जाके देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप ऐसा दिखाई दे रहा होगा, समझ गए ना। मेरी तरफ से, आपकी तरफ से हो सकता है ये क्लॉकवाइज हो, मेरी तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप उल्टे बैठ के देखो तो मेरी तरफ से क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हो क्या रहा बेटा, ये जो सॉल्व फ्रंट फेस में तो साउथ बन रहा है, बट बैक फेस में क्या बनेगा बेटा? नॉर्थ। क्या बनेगा? नॉर्थ बन रहा है। अब मैं इस कॉइल को थोड़ा सा टिल्ट करके बनाता हूँ बेटा, पहले तो देखना, ये कॉइल यदि मैंने टिल्ट करके बनाई, चलो बना ली, तो बेटा एक फेस इसका जो बाहर वाला है ये क्या दिखेगा? साउथ। और जो पीछे वाला है वो क्या दिखेगा? नॉर्थ। मतलब ये जो बाहर वाला है, सामने वाला, इधर की तरफ साउथ दिखेगा। इसको मैंने लिया, ऐसा था और ऐसे कर दिया, तो ये फेस बनेगा साउथ, ये बनेगा क्या? नॉर्थ। बेटा नॉर्थ और साउथ जहां पे भी दो पोल आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो करंट लूप हमेशा किसके जैसे काम करता है बेटा? डाइपोल के जैसे। क्लियर हुआ ना। तो एक फेस नॉर्थ है, एक फेस साउथ है, और नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ बाहर की ओर और अंदर साउथ टू नॉर्थ। क्योंकि लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डाइपोल में हमेशा आउटर कहाँ जाती है? नॉर्थ टू साउथ, और इनर रीजन में जाती है साउथ टू नॉर्थ। ऐसे बहुत सारी लाइंस कंटिन्यूअसली घेरी रहेंगी। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक करंट लूप ऑलवेज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर हुआ बच्चे? अब इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है मैंने आपको बताया था। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, देखो बेटा डाइपोल मोमेंट आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था बेटा तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम, बेटा ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, याद आया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो, ये इधर नहीं बनाना चाहिए मुझे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ट्रेवल कहाँ करता था बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइपोल में। मगर जो डाइपोल मोमेंट था वो ट्रेवल करता था क्या? नेगेटिव चार्ज टू, याद आया? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हुआ क्या भाई? हुआ यहाँ पे ये कि जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां पे कौन आ चुका है? नॉर्थ, और जहां पे नेगेटिव चार्ज था वहां कौन आ चुका है? साउथ। अभी भी कार्यवाही कुछ ऐसी ही हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जाता है नॉर्थ टू, और इनसाइड जाता है साउथ टू नॉर्थ। फर्क एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ओपन लूप था, मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइन प्रेजेंट नहीं होती थी, मगर इसमें मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक लाइन प्रेजेंट होती है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी यही होती है, साउथ टू नॉर्थ। समझ में आ गया? साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें साउथ आगे है, नॉर्थ पीछे है, तो कैसा बनेगा? ऐसे, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आया बेटा समझ में? यदि इसको मैं ऐसे रख दूं, इसको इस तरीके से रख दूं जैसे ये था,
ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो बेटा इस डायरेक्शन में ये प्लेन के बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर से बना दूं, ये देखो ये लीजिए बना दिया थोड़ा सा ऐसा। ये प्लेन है बेटा, ठीक है ना, इसमें करंट जा रही थी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये वाला जो पार्ट बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा? साउथ, ये सोनो। और ये जो पार्ट बनेगा ये क्या बनेगा बेटा? नॉर्थ। यही था, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, है ना, इसको मैंने इस तरीके से मोड़ दिया, सॉरी ऐसा, ये था ऐसा मोड़ा बेटा, ऐसा। ओके, क्लियर हो गया ना? इस तरीके से मोड़ लिया मैंने, ये ऐसा था, इसको मैंने ऐसा मोड़ दिया। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा? साउथ, और उधर वाला पार्ट क्या रहेगा? नॉर्थ। तो ये देखो बेटा, ये जो डायरेक्शन जाएगी इसकी डाइपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वो क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द। सो आई में डिफाइन हियर मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू आई करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, आई ए करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया into n cap. N cap is the normal unit vector to the plane. Yes.